हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जैसे कि लास्ट टॉपिक जो हमारा था, दैट मींस इन लास्ट वीक व्हाट आई एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, introduction of HTML, history of HTML, and history of World Wide Web. But I observe only few students are seeing that tutorial. That means you are not serious about your study. I just remind you, you are in a board year. If you are not doing the hard work right now, then definitely you are in trouble afterward. So be serious. My period is come only once in a week. So it's a matter of only half an hour. सिर्फ आधे घंटे की मैटर है और that time also you are not ready to give. And it's a scoring subject that you know it's a MCQ type of exam. और मार्क्स की अगर हम बात ना करें so is very useful in future. बहुत knowledgeable है and right now is the trend of computer only. तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है. Here I give you the sufficient guidance how to do, what to do. If any doubt is there, then you come to me. It's not an issue. So it's my request you be serious in the computer study also and give half an hour minimum to the computer in a week. और उसके लिए मैंने स्पेशल एक चैनल मेरी खुद की बनाई है, प्रतीक सर मेक कंप्यूटर लर्निंग इजी. So I request you first you all subscribe my channel to get all the videos related to the computer tutorials plus technology related. क्योंकि कंप्यूटर के रिलेटेड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारी चैनल्स यूट्यूब पे है मगर ट्यूटोरियल की चैनल्स बहुत कम है जो सिलेबस वाइज चला रही है. इसलिए मैंने सोचा कि एक चैनल ही बना लूं जिससे सबका फायदा हो. आई वांट टू गिव ए नॉलेज टू एवरीबॉडी whoever wants to take. So you subscribe my channel Pratik sir make computer learning easy and click on the notification bell icon. Whenever I add any videos then you immediately get the notification and you are able to get some extra knowledge regarding the tutorial, your syllabus as well as some other technologies. Now today we learn the basic HTML tags. So first I explain the basic HTML tags through computer, यानी कि हम कंप्यूटर में यूज करते हैं तो नोटपैड का यूज करेंगे एज एन एडिटर और ब्राउजर में हम उसका रिजल्ट देखेंगे. ये कॉमन प्रोसेस है. If you have a computer or laptop, then you use Notepad. You type in Notepad and see the result in any browser like Chrome, Firefox. मगर सबके पास लैपटॉप नहीं है. That I know. You be with me. ये वीडियो कंटिन्यूस देखते रहो. At last of this video, I am going to explain how to do the practical part of this HTML tags in a mobile. बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैंने सर्च की हुई है, उसमें से एक ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी. That I just provide you. एंड इन माई डिस्क्रिप्शन ऑफ माई वीडियो आपको उसके लिंक भी मिल जाएगी. एंड एट लास्ट टुडे इन लास्ट ऑफ दिस लेक्चर आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ माई ट्विटर अकाउंट टू सॉल्व द डाउट्स रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी और रिलेटेड टू द ट्यूटोरियल. मैंने ट्विटर ग्रुप सॉरी टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, उसकी भी मैं लिंक दूंगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स you just post your doubts in that group, then I just try to solve the doubts as early as possible. So ये वीडियो में बने रहिए. At the end I provide the link of that new app, mobile app for HTML practice, as well as my telegram groups link for the doubt solution. Now let's start with a notepad. So you all know the notepad. नोटपैड इज ए बेसिक एडिटर. HTML के प्रैक्टिकल पार्ट करने के लिए आपके पास बेसिकली कोई एक एडिटर होना चाहिए. यू नीड वन एडिटर टू टाइप द HTML कोड एंड you save that file in .html format and then afterward HTML कोड को समझता कौन है? ब्राउजर. व्हाट इज वेब ब्राउजर? ये जो आप क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा वो सब जो भी है ना, वो सब ब्राउजर है. वेब ब्राउजर इज कॉल्ड. एंड टू सी द कंटेंट्स ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट की वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए, देखने के लिए हमारे पास ब्राउजर चाहिए ही चाहिए. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे as an editor we use notepad and I have a Firefox. So for a result I check my result in Firefox browser. आपके पास Chrome है तो Chrome में भी कर सकते हैं, Opera है Opera में भी कर सकते हैं. So let's start. And as per the structure, the first line is HTML. HTML is the first line. That means we are going to start the HTML.
Then how many section of HTML language? Two section. One is head. Right, one is head. मैंने फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट टॉपिक में ही आपको कहा था पार्ट वन में द बेसिक ऑफ HTML, उसमें मैंने कहा था कि हेड एंड बॉडी टू सेक्शंस आर देयर. What is the use of exactly the head section? To write the details about the website, and that is called the metadata. The information related to website is called metadata. Remember this definition. यानी कि आप वेबसाइट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, क्या क्या जो मैंने आपको इसके पहले के पीरियड में भी कहा था. वेबसाइट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेबसाइट मीन्स वेबसाइट किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, उसका टाइटल क्या है, समथिंग related to the website that we add in the head section, and the information related to the website is called metadata, meta information. उसके लिए head का यूज होता है. And head is not a main part of your HTML, it's just the outline. That means आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है जो आपके मेन वेब पेज में नहीं दिखने वाला. So generally we use the head section to give a title to our web page. तो टाइटल बार में दिखता है जो सब द टॉप ऑफ द विंडो टाइटल बार होता है, उसमें क्या होता है, वेबसाइट का नाम. वो हम जनरली प्रोवाइड करते ही है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हेड. सो टाइटल, टू गिव अ टाइटल व्हिच टैग इज यूज्ड, टाइटल टैग. एंड दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. यू आर एबल टू राइट योर HTML इन एनी केस. आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, मिक्स में भी लिख सकते हो, डजंट मैटर. यू आर फ्री टू राइट इन एनी लेटर. सो टाइटल में ले रहा हूं HTML first demo. You can give any title according to your work. Then you close your head section. How to close any tag? Angular bracket slash HTML. Slash sign is there. This one, this one, this one, this one. This is a slash sign. Don't do that one. Backslash. Slash sign का use करना है. Now I am going to start body tag. Body tag. Body is your main part of your web page. The actual content of your page that we are able to write through body section. Body tag से ही हमको लिखना है. तो body tag हमने start किया. Now we start our actual work. Body tag. Now here in your, as per your syllabus I am going, in that also some tags are extra, no need to do the practice of that. I just try to explain maximum tags. और टैग को एलिमेंट भी कहते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले के टॉपिक में कहा था. तो as per your textbook or syllabus, there are 6 types of heading styles. You know, to start any topic first we write the heading. और वो heading कैसे लिखते हैं हम? We are just write the heading in a bold letter, little bit bigger size, like that. तो यहाँ पे 6 स्टाइल है. How many styles of heading? 6 styles are there, and for all the 6 styles, for all the 6 kinds of headings, different tags are used. And the namely of all the names of different tags are H1, H2, H3, H4, H5 and H6. H1 to H6. Okay, so 6 types of headings, and for that we have 6 different types of tags. So I am going to explain all the headings with a difference. H1, you start. I am just started H1 tag, यानी कि heading 1 start किया, and I am going to write something. Welcome students. And if you start anything, then you close it also. What's the problem if you are not going to close? अगर आप कोई टैग क्लोज नहीं कर रहे हो तो वो टैग ऑन माना जाएगा और उसकी इफेक्ट आगे के कंटेंट्स में भी कंटिन्यू रहेगी. तो बी केयरफुल. देन आफ्टरवर्ड, नेक्स्ट H2, मैंने सेम कंटेंट्स लिखा. देन आई एम गोइंग टू क्लोज H2 टैग. मैं सिंपली उसको कॉपी कर देता हूं, बार बार लिखना ना पड़े. H3, H3 टैग का नाम तो चेंज करना पड़ेगा.
कॉपी पेस्ट करो तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ सेम है. देन H for H5 and last H6. So the name of tags are H1, H2, H3, H4, H5, H6. These all tags are used for heading. अलग अलग हेडिंग की स्टाइल है, उसके लिए अलग अलग टैग्स है. नाउ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर वर्क, अगर आपको लगता है कि इसके आगे मुझे फिलहाल आज काम नहीं करना है, या तो योर वेब पेज इज ओवर, देन यू क्लोज योर बॉडी टैग एंड एट लास्ट यू क्लोज योर HTML लैंग्वेज. बॉडी टैग को कब क्लोज करना है? जब आपका पूरा वेब पेज कंप्लीट हो. Because body means you are going to start your page. You just do all this work and at last you close your body, और सबसे लास्ट में हमको HTML लैंग्वेज क्लोज करना है. So this is the basic program coding that I am right here. Okay, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक HTML का बेसिक कोड लिखा. Now what's the next? You just save this file first, but be careful. ये आप नोटपैड में जो आप लिख रहे हो ना, वो टेक्स्ट फाइल बनती है. Whatever I write here, it becomes text file. And browser understands only HTML file. Hypertext file को ही browser समझता है. तो हमको करना क्या है? We need to convert our text file into HTML file. So how can we translate it? So open the file menu, save as, और सेव करते वक्त you just choose the location. Choose the location. मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फाइल, ध्यान रखो कि आप कहाँ पे अपनी फाइल सेव करो. यू जस्ट चेक द एड्रेस where exactly your file is going to save. That from here you check, and here you give a name. Here you see by default is .txt. We don't want .txt. Demo1 dot, immediately after the file name dot HTML you write. Don't forget to write .html at the end of your file name. फाइल के एंड पे फाइल का नाम देने के बाद तुरंत .html लिखना है. So what's the benefit of this? It converts your text file into HTML file and click on save. Simple. Now our next step is to see the result of this. We are not able to see the result of this in Notepad. So for that we open the browser. Here you press Ctrl O. मैंने Firefox है मेरे पास, Ctrl O press कीजिए. Choose your file and for that you just know where is your file. आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल कहाँ है. मुझे पता है. So according to that, I am just trying to find out my file. कौन सा नाम दिया था? demo1. देखो यहाँ पे आ गया demo1.html. Click on that, open it. देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की है. टाइटल स्टार्ट किया और क्लोज क्या कर दिया? HTML क्लोज किया. If I start the title, और उस वजह से वहां पर रिजल्ट नहीं आ रहा था. अगेन यू सेव माय फाइल. जो भी अपडेट करते हो उसको सेव ही करना है. बार बार सेव एज करने की जरूरत नहीं है. हमने ऑलरेडी फाइल का नाम दे दिया है, .html में कन्वर्ट भी कर दिया है, और उसमें मैं अगर कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो उसको मुझे सिर्फ सेव करना है आफ्टरवर्ड. नाउ हियर ये फाइल ऑलरेडी ओपन है. यू जस्ट प्रेस F5 की, और यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करने पर रिफ्रेश होगा. नाउ यू सी द रिजल्ट. वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स. What is the difference between all these headings? The difference is in a size. H1 displays the heading with the biggest size, और H6 से हेडिंग ही आएगा मगर सबसे छोटी साइज में आएगा. आप देख सकते हो कि हेडिंग है इसलिए सभी कंटेंट्स बोल्ड इफेक्ट में ही दिख रहे हैं. इट डिस्प्लेज इन अ बोल्ड इफेक्ट. तो हेडिंग H1, H2, H3, H4, H5, H6. That means you have a 6 different varieties of heading. According to your requirement, you use any one out of these 6 if you want to use. Now coming to the next topic, the property of alignment. मैंने आपको पहले पीरियड में ही बताया था. There are 3 parts of elements tags. The name of tag, space, property is equal to value. तो यहाँ पर भी suppose now I want my heading in the center of the page. यहाँ पे by default left side आ रहा है. So I need to use the property of particular tag. तो मुझे H1 फर्स्ट जो हेडिंग है उसको मुझे सेंटर में चाहिए. तो H1
स्पेस, विच प्रॉपर्टी इज यूज, अलाइन, अलाइनमेंट के लिए अलाइन का यूज होता है, एंड इज इक्वल टू उसकी वैल्यू. यू रिमेंबर दिस वन, h1 is a different word, वो क्या है, टैग है, and align is a property, so you must put one space in between these two, and property is equal to value continuous होना चाहिए, align is equal to center, वो continue है. Okay, so you write like this, and this is the one kind of command, तो वो angular bracket के अंदर ही पूरा पार्ट होना चाहिए. Whatever you write inside the angular bracket, HTML consider as a part of command, और angular bracket के बाहर जो आप लिखते हो वो normal contents है, जैसा आप लिखोगे डिट्टो ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा. अगर मैंने वेलकम में स्पेलिंग में गलत लिखा होगा तो कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि वो नॉर्मल कंटेंट्स है. एचटीएमएल का काम है जो आपने लिखा है उसको डिटो प्रिंट कर देना, बट डोंट मेक एनी सिंगल मिस्टेक इनसाइड द एंगुलर ब्रैकेट, दैट यू केयरफुल, बी केयरफुल. नाउ अगेन आई सेव दिस फाइल and see the result. Now again I press the refresh button. Now you see this heading comes in the center of the page, because which value I provide, align is equal to center. What are the possible values, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट. बाय डिफॉल्ट इज लेफ्ट, तो अगर आपने अलाइन प्रॉपर्टी सेट नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में ही आएगा. मगर अगर सेंटर या राइट डाला है देन इज कंपल्सरी टू यूज अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ h1 टैग. सपोज h4 में जो भी मैंने लिखा है उसको राइट साइड चाहिए, align is equal to राइट. सेव इट एंड रिप्रेस इट. देखो ये राइट साइड आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं. So this is the way to write in a notepad and see the result in the browser. But what the problem here? Not all the students have a लैपटॉप. तो अभी मैं मोबाइल की एप्लीकेशन जो मैंने आपको कहा था कौन सी यूज करनी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. So here I just show it to you. First I connect my mobile. So I connect my mobile here. Now here you see tab edit. Lots of HTML editors are there. मैंने बहुत सारे चेक किए बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन ऑल द एडिटर्स. कुछ बहुत मोस्टली सभी एडिटर्स में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, तो अगर आपने इधर उधर क्लिक कर दिया तो देयर इज अ चांस ऑफ वायरस एज वेल एज कुछ आप काम कर रहे हो मुश्किल से और उसमें कुछ दूसरा कंटेंट ओपन हो जाएगा, तो देयर इज अ प्रॉब्लम. मगर ये ट्रैप एडिट इज अ वेरी गुड, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है. रिजल्ट भी आप उसी के अंदर देख सकते हो. यू जस्ट डाउनलोड and install this Trap Edit HTML editor from Google Play Store. उसके लिंक भी मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आपको आसानी हो. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट डायरेक्टली एंड इट डायरेक्टली ओपन्स द प्ले स्टोर, इंस्टॉल इट. सो हाउ इट वर्क्स दैट आई एक्सप्लेन. ट्रैप एडिट पे क्लिक करो. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक टेस्ट बनाया हुआ है. यू क्लिक ऑन द मेनू, यहाँ पे मेनू पे क्लिक करो. लर्न टू कोड, गेट सोर्स कोड, प्रोजेक्ट्स एंड टेक्स्ट एडिटर, इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है. इफ यू वांट टू लर्न HTML, बट फॉर दैट यू नीड इंटरनेट इन योर मोबाइल. गेट सोर्स कोड, उसके लिए भी मोबाइल में इंटरनेट चाहिए, ठीक है. मगर अगर आपको सिर्फ HTML का प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए अगर इंटरनेट नहीं भी है देन ऑल्सो यू आर एबल टू डू द प्रैक्टिस. So that is the main point. I am just going to click on the text editor because we need an editor. Text editor पे क्लिक करो. Choose empty editor और basic HTML format. बेसिक HTML फॉर्मेट से फायदा ये होगा कि आपको HTML के स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई मिलेगी. तो बेटर वी टेक बेसिक HTML फॉर्मेट. नाउ हियर यू सी टाइटल पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है. समथिंग इज ऑटोमेटिकली रिटन, नो नीड टू कैंसल एनीथिंग, यू जस्ट चेंज द टाइटल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. तो मैं यहाँ पे टाइटल चेंज कर रहा हूँ. देखो जैसे ही मैंने टैब क्लिक किया तो हेल्प मिल रही बहुत सारे. नीचे पूरा कीबोर्ड आ रहा है, कीपैड आ रहा है. उसके अलावा टू स्टार्ट एंड क्लोज द एंगुलर ब्रैकेट एंड टू क्लोज द टैग, यहाँ पे रेडीमेड बटन्स आ गए हैं टाइपिंग के. तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके कीबोर्ड चेंज करना नहीं है. यू जस्ट कीप हियर दैट इंग्लिश अल्फाबेट्स.
तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एडिटर। तो मैं पहले इसको निकाल रहा हूँ। देखो एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आ जाएगा। टाइटल में दे रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट डेमो एंड देन यू क्लोज इट योर टाइटल। स्पेलिंग राइट होना चाहिए क्लोज करने के लिए, आपको पता है ऐसा है। रेडीमेड मैंने लिया, सब पूरा कीपैड यहाँ पे है। तो टाइटल क्लोज, देन नाउ आई एम इनसाइड द बॉडी टैग। H1 टैग में यूज करूंगा। H1 जैसे ही मैं एंगुलर ब्रैकेट बंद करूंगा वो क्लोज भी ऑटोमेटिक हो गया। इट क्लोज ऑटोमेटिकली। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस एडिटर। आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और कर्सर, वेयर द कर्सर इज देयर, वेयर इज द कर्सर इन बिटवीन टू, यू जस्ट राइट योर कंटेंट्स सिंपली। मैं यहाँ पे सिर्फ वेलकम लिख रहा हूँ। देन नेक्स्ट लाइन H2। जैसे ही मैं एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करूंगा इट क्लोज द tag also and your cursor is in between two, you just type your contents। और मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ H5 only 3 I use just a demo of this app H3। इसमें H1 में मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर दे देता हूँ। align is equal to center। Now is ready। so first you save this file, click on these three dots and save it। file name you give, आपको यहाँ पे पीछे डॉट एचटीएमएल डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस एडिटर इज स्पेशली फॉर एचटीएमएल एडिटर। डेमो 1 you can give any name, save। फाइल एक्सटेंशन देना है, यहाँ पे देने के लिए कह रहा है तो बेटर यू गिव डॉट html, save। now to see the result you just click on the play button here, play, you got the result। रिजल्ट मिल गया आपको। देखो यहाँ पे वेलकम का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है तो एरर नहीं दिखाएगा, बिकॉज इट्स अ नॉर्मल कंटेंट। व्हाट इज द जॉब ऑफ HTML और ब्राउजर का काम क्या है, जो टैग है और जो हमने प्रिंट करने के लिए बोला है वो सिंपल प्रिंट कर देना। अगेन वी गो बैक, वी चेंज द स्पेलिंग, अगेन सेव इट। नाम देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ। क्लिक ऑन प्ले, you get the result properly। So this is the best way to do the practice at your home in your mobile। So now don't excuse you don't have a facility to do the practice। मैंने आपको ऐप दी है ट्रैब एडिट, उसकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट्स देन you just open my telegram group, telegram account and put your doubts. I try to solve as early as possible। before closing it, again I request you subscribe my channel, it is specially for computer learning, make computer learning easy। यहाँ पे 10th 11th 12th के tutorials है as per the syllabus, as well as some other technologies tutorials is also there। and click on the notification icon to get the updated videos एज अर्ली एज पॉसिबल टू यू, यानी कि आपको सबसे पहले मिल जाएगा नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पर। ओके, सो यूज दिस ऐप फॉर अ मोबाइल प्रैक्टिस, अदरवाइज नोटपैड एंड ब्राउजर बोथ आर देयर, बेटर यू यूज ऐप ओनली बिकॉज नो नीड टू चेक द रिजल्ट इन ए ब्राउजर सेपरेटली। प्ले बटन प्रेस किया और हमको मिल गया रिजल्ट। सो आई होप you all understand very well। don't forget to subscribe my channel and share it to your other friend also। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। my duty is to spread this knowledge as many of people। if your friends are there in other schools and I explain everything in English and Hindi, so I think Gujarati medium students also are able to understand, and my English is not that too much high। okay,
So you share amongst your friends also, not an issue. Our plan is to provide the tutorial to share the knowledge to the maximum students. Thank you.